data into a more meaningful information. Okay, great. Any other guesses? I think it's a ETL tool, which which kind of helps us to transform data into more cleaner version Mm-hmm. for So better what? analysis. Okay, great. What exactly you mean ETL tool? So a Power Query helps you to to gather data from various, or rather extract data from various sources. It could be Excel files, it could be Notepad, it could be MS Access, anything. Helps you to consolidate that data, Mm-hmm. transform that data, and which could help us to do more analysis or better analysis. Okay, great. And where the Power Query is used exactly? That is what I want to know. That's my main goal, where I can use it. Mm-hmm. Okay. So any other answers or guesses regarding Power Query? Uh, Power Query is a kind of business intelligence that we have in Excel or in the Power BI. This is a feature that is been provided by Microsoft, Mm-hmm. and what it helps is to it is a kind of query which helps us to uh, clean up the data, or we can bring any kind of data in a shape whatever we require as per our requirement. So there are many functions that we can use in a Power Query, Mm-hmm. and which will help us, or which can help us to transform a data, any kind of data, in a particular structured data that we're looking for. And it's a kind of business intelligence, right? So this is what I understand. Okay, great, great. ठीक है. So friends, Italia क्या पूरा traducción a la prelost किरण आप टूटा कुछ हुआ है ना बोल रहे हैं? इसकी वजह से किरण, आप कुछ बोल रहे हैं? छोड़ डाल अंदर नहीं इस तरफ नहीं बैठा पट्टी की तरफ हाँ ये बैठ गया ये बैठ गया ये बैठ गया वो वाला टायर के ऊपर नहीं है उसका वाइट वाला है ना जो टायर वो उसमें आने चाहिए किरण आप प्लीज म्यूट पे रहो. ओके, ठीक है. सो आकांक्षा का ये क्वेश्चन है कि दिस डेमो इज फॉर एडवांस एक्सेल. आकांक्षा नहीं है. ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, दिस इज रिगार्डिंग पावर क्वेरी एंड पावर पाइवोट. Sir, I have a Mm, question here. so yes, Sachin, you can carry. Okay, so now, as you said, so for basically to get into a Power Query, so do we require any kind of prerequisites? I mean, kind of Excel knowledge in advanced level or something like that, or just we can start from scratch from here only. I mean, is the basic. Just I want to know what kind of prerequisites that will require, or which can help us to learn the Power Queries in more efficient way. ओके, सचिन, वेरी गुड क्वेश्चन. सो एनीवन एल्स हैज द सेम क्वेश्चन? Yes. I mean, to be honest, I just had reviewed one video of Power Query. Apart from that, doesn't have much knowledge on Power Query. So hopefully this would cover all basics of it. I mean, this session would cover. Is my understanding correct? यस. Okay. तो देखो फ्रेंड्स, Shekhar, I have a Able question. जी जी Is audible to you because I'm not Yes, able to hear Shekhar, anything. I have question. Actually, I was yeah, enrolled for advanced Excel, आकांक्षा. so I'm not sure whether Hello? this demo and after the enrollment you are going to cover advanced Excel or not. पावर क्वेरी इज अ पार्ट ऑफ एक्सेल Hello? इटसेल्फ, है ना? तो पावर क्वेरी Uh, जो है वो एक्सेल का ही पार्ट है. बट हम यहाँ पर एक्सेल के फीचर्स नहीं देखने वाले हैं. तो okay, वी विल so बी. you mean you will be covering only Power Query only. Later on, you will be working on advanced Excel, right? Is this what you mean? लेट मी क्लैरिफाई. तो एडवांस एक्सेल जो है, वी हैव अ डिफरेंट कोर्स फॉर दैट. So wherein we cover a lot of formulas, graphs, pivot tables, conditional formatting, data validation. These are the part of advanced Excel course. Okay. And in this course, we will be more focusing into Power Query and Power Pivot.
तो अभी पावर क्वेरी में क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पर मर्ज आता है, अपेंड आता है, कंडीशनल कॉलम को कैसे ऐड करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती है। और इसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग, आपको डेटा के साथ कैसे काम करना है, अलग अलग टेबल्स को कैसे ज्वाइन करना है, और सारे टेबल्स को मिला के अगर आपको कुछ एनालिटिकल एक्सप्रेशंस लिखना है तो उसको हम बोलते हैं डैक्स, उसको कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें इस कोर्स में हम फोकस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर आकांक्षा? शंकर, सर आपका आवाज बीच में शंकर, नहीं आ रहा था, आई वाज नॉट एबल टू कैच यू अप। हम्म। आप और एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई रिकनेक्टेड, मुझे लगा कि मुझे आवाज नहीं आ रहा, सो आई हैव रिकनेक्टेड अगेन। ओके, let me repeat myself. ओके, सॉरी फॉर इट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हाँ, तो आकांक्षा का एक क्वेश्चन था कि आर वी गोइंग टू कवर द फीचर्स ऑफ एडवांस एक्सेल इन दिस कोर्स और नॉट? ये सबको क्लियर है क्या क्वेश्चन था? यस। ओके हाँ हाँ क्लियर है। ओके। तो एडवांस एक्सेल दैट्स द ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कोर्स। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, उसके अंदर हम जो भी बेसिक टू एडवांस्ड एक्सेल फीचर्स है उसको हम कवर करेंगे, लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स, और बहुत सारे फंक्शंस है, फॉर्मूलेज है, और यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम वो कोर्स में हम कवर करेंगे। दैट्स मोर इनटू एक्सेल ओरिएंटेड कोर्स। लेकिन फ्रेंड्स इस कोर्स में हम क्या फोकस करेंगे, इस कोर्स में हम पावर क्वेरी, एम लैंग्वेज और पावर पाइवट के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। शंकर, जी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अभी जो एक्सेल में, जो एडवांस एक्सेल में जो रिपोर्ट्स वगैरह सब जो बनाते हैं अपन लोग, तो वो ये सब ये चीज इसमें मैं बना सकता हूँ क्या? और सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि इसको एक्चुअली एक्सेल के अलावा और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ लगता है क्या? मतलब एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए और इसमें मतलब क्या क्या इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में? ओके, आपके पास एक्सेल है? हाँ, यस। देन यू आर गुड टू गो विद द पावर क्वेरी। तो कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बहुत सारे डेटा के साथ जो भी आप काम करते हो, जो भी कॉमन कॉमन ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो डेटा के साथ, वो सब चीज़ें आप पावर क्वेरी थ्रू आप कर सकते हैं। आप प्लीज़ म्यूट पे रहिए। Hi, Shekhar. ओके, So, इसके Shekhar, hello, Shekhar. This is Rajesh. जी Shekhar, do we need any specific version of Excel for this Power Query, or all Excels are okay? यस, I'll explain that in a moment. ओके Okay, okay, thank you. ओके। तो फ्रेंड्स अभी हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक बेसिक बैकग्राउंड दूंगा, व्हाट एग्जैक्टली द पावर क्वेरी इज। ओके Shikhar, just to before that, I just have a very quick question. This course is about mastering the Power Query, not just the basic one, right? नो, वी विल बी कवरिंग फ्रॉम बेसिक टू वेरी एडवांस्ड पावर क्वेरी। Okay, so we will be mastering the Power Queries, right? यस या Okay, great. Thank you. ओके ग्रेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस ओके, यस। Yes. तो कोर्स का Yes. नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एक्सेल पावर क्वेरी एंड पावर पाइवट। In this course, we will be focusing first on Power Query, then on Power Pivot. तो ये दो अलग अलग एक्सेल के एड-इन्स हैं। ओके, तो पावर क्वेरी एक अलग एड-इन है और पावर पाइवट एक अलग एड-इन है। हम दोनों एड-इन को बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं इन दिस कोर्स। तो फ्रेंड्स ये दोनों एड-इन का काम ये भी होता है, ये दोनों एड-इन्स एक्सटेंसिवली यूज होता है पावर बीआई के अंदर। कहाँ पर फ्रेंड्स? इन पावर भी है। यस। तो आप पावर क्वेरी को आप एक्सेल में सीखो या पावर बीआई के अंदर सीखो, दोनों जगह पे आपको सेम इंटरफेस मिलेगा। ओके। ओके ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज पावर क्वेरी? तो जैसा आपने बताया, तो इट इज एन ETL टूल यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ETL का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स?
extract, transform, extract, transform, load. वेरी गुड. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. तो एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका सोर्स डेटा अलग अलग सिस्टम के अंदर है, फॉर एग्जांपल आपका सोर्स डेटा जेसन फाइल के अंदर है, एक्सएमएल के अंदर है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर है, एक्सेल फाइल के अंदर है, आपको अलग अलग जगह से डेटा को कैसे लेना है, ये एक्सट्रैक्ट का पार्ट है. और डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन आता है इसके बाद, मतलब डेटा को आपको क्लीनिंग करना पड़ता है, आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको डेटा के अंदर अलग अलग कॉलम्स को ऐड करना पड़ता है ना, आपको अलग अलग टेबल्स को मर्ज करना पड़ता है, अपेंड करना पड़ता है. ये सब चीज़ें कहाँ पर आती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं. आपने अलग अलग सोर्सेज से डेटा को लिया है, आपने ट्रांसफॉर्म भी कर चुका है, लेकिन वो डेटा को आप कहाँ पर यूज़ करोगे, दैट कम्स अंडर लोड पार्ट. तो उसको आप कहाँ पर लोड करोगे. So this is mean by ETL. So the next point is it has combined features of SQL, Excel as well as VBA. तो फ्रेंड्स आप में से कोई बताना चाहोगे SQL के कौन से फीचर्स है, Excel के कौन से फीचर्स है और VBA के कौन से फीचर्स है. SQL having the queries उसमें टेबल के लिए, टेबल से डेटा निकालना या टेबल से जो भी डेटा वगैरह जैसे अपन चेक कर दे उसके क्वेरीज लिख सकते हैं, उसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह वो यूज करके टेबल्स वगैरह वो क्वेरीज होता है. तो इसके साथ साथ हम अलग अलग टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं, हम अलग अलग टेबल्स को अपेंड कर सकते हैं, है ना. और एक बहुत बड़ा डेटा है, उसका सबसेट कॉलम्स हम ले सकते हैं या सबसेट रोज हम ले सकते हैं. ये सब चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती है, एक्सटेंसिवली ये एसक्यूएल के अंदर यूज़ होती है. और ये सारे के सारे फीचर्स आपको पावर क्वेरी में इनबिल्ट मिलने वाले हैं. इज दैट क्लियर, एसक्यूएल का पार्ट. सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर. जैसे आपने कहा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लाइक एसक्यूएल, एक्सेल एंड VBA, राइट. तो अब जैसे कि मैं हूँ, I am familiar with Excel and some of the commands, not expert in that. But SQL तो ना के बराबर है, VBA भी ना के बराबर है. So how this will be beneficial for me, because अगर मुझे पावर क्वेरी जानना है, right, so I should be doing this कि Excel कैसा, sorry, SQL कैसे फंक्शन करता है या VBA कैसे फंक्शन करता है. So how we will be handling this part, because मैं तो scratch से start कर रहा हूँ and now we are from कैसे, मतलब मेरे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, ओके, हाउ दैट विल अप्लाई इन माय केस. गुड. अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन था कि इसका प्री रिक्विजिट क्या है, या है ना. तो अगर आप बेसिक एक्सेल जानते हैं दैट इज इनफ. ओके, तो हम सब चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं. ओके, अगर आपके पास एसक्यूएल का नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास VBA का नॉलेज नहीं है, दैट इज टोटली फाइन. ओके. और जितने लोग एसक्यूएल जानते हैं इस ग्रुप के अंदर, अगर आपको दो टेबल को ज्वाइन करना है तो फ्रेंड्स आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेबल ज्वाइन. हाँ, वहाँ पर भी अलग अलग टाइप्स के ज्वाइंस होते हैं. लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन होता है. यस, नो. यस. लेकिन ये सब चीज़ें आप पावर क्वेरी में आप कर सकते हैं यूजिंग फ्यू क्लिक्स. आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. इंटरफेस में सब चीज़ें हैं, बस आप दो टेबल को बताओ और दोनों में क्या कॉमन है बस वो बता दो आप, तो आपका काम हो जा रहा है यहाँ पर. ओके, मैं कुछ ही देर में मैं आपको उसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ. शंकर जी. शंकर, इसमें जैसे कि अभी ये एसक्यूएल है, तो जैसे कि अभी मुझे एसक्यूएल सर्वर से कुछ डेटा लेना है, तो मैं वो ले सकता हूँ क्या? यस, बिल्कुल ले सकते हैं आप. तो सर्वर से सब कोई भी डेटा के ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ? नॉट ओनली एसक्यूएल सर्वर, आप कोई भी डेटाबेस के अंदर से आप डेटा ले सकते हैं. मैं आप थोड़ी देर में आपको बताऊंगा आप कहाँ कहाँ से आप डेटा को ले सकते हैं. ओके. यस. ओके, ग्रेट. तो इट्स बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन पावर BI एंड एक्सेल 2016 और हायर वर्जन्स. तो अगर आपके पास 2016 एक्सेल का वर्जन या हायर वर्जन है देन पावर क्वेरी आपके पास बिल्ट इन रहेगा, आपको एडिशनल इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है.
ये पॉइंट क्लियर है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, Yes. तो फॉर एक्सेल 2010 एंड 13 एक एड इन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइट से, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स? शिखर एक क्वेश्चन है, आई मीन आई वाज जस्ट चेकिंग कि मेरा एक्सेल 2016 है लेकिन उसमें ये ऑप्शन ही नहीं है पावर क्वेरी पावर पिवट का। आपको डेटा के अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म का ग्रुप दिख रहा है? नहीं, what I can see is from access web text existing connection new query। अच्छा हाँ, राइट राइट, हाँ, ओके ओके, दैट्स अ पावर क्वेरी। ओके ठीक है। ओके ग्रेट, Okay. ठीक है। नेक्स्ट, अब हम ETL को थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं यहाँ पर। तो एक्सट्रैक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, आप अलग अलग जगह से डेटा को ले सकते हैं। यहाँ पर देखो डेटाबेसेस है, एक्सेल वर्कबुक्स है, टेक्स्ट फाइल्स है, XML है, वेब पेजेस है, फोल्डर्स है, एंड देयर आर n नंबर ऑफ प्लेसेस फ्रॉम विच यू कैन टेक और यू कैन एक्सेस द डेटा without installing any additional piece of software into your system। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दीज कनेक्टर्स आर बिल्ट इन विद इन पावर क्वेरी। ओके फ्रेंड्स? Sure, Sikar. ग्रेट, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ कॉमन ट्रांसफॉर्मेशंस को लिस्ट किया है, लेकिन दीज आर नॉट रिलेटेड टू द लिस्टेड वंस। तो यहाँ पर आप मर्ज अपेंड कर सकते हैं, असाइन डेटा टाइप्स कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स को आप ऐड कर सकते हैं, आप टाइम इंटेलिजेंस कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, आप एग्रीगेशन कर सकते हैं, पाइवट कॉलम्स कर सकते हैं, अनपाइवट कॉलम्स कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे क्रिएटिंग कस्टम फंक्शंस। तो फ्रेंड्स, जैसा VBA के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर भी पावर क्वेरी के अंदर हम अपने खुद के फंक्शंस हम लिख सकते हैं, एंड दीज फंक्शंस आर मच मोर पावरफुल। ओके, Okay. नेक्स्ट पार्ट आता है लोड। तो लोड इट स्लाइटली डिपेंड करता है आप पावर क्वेरी को कहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एक्सेल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ट्रांसफॉर्म्ड डेटा को आप एक्सेल के वर्कशीट के अंदर अपलोड कर सकते हैं, आप पाइवट टेबल रिपोर्ट्स के अंदर अपलोड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली पाइवट चार्ट्स के अंदर अपलोड कर सकते हैं, या पावर पाइवट के डेटा मॉडल के अंदर भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और एक टाइप होता है इसे ओनली कनेक्शन। हम अक्सर ये भी यूज करते हैं, ओनली कनेक्शन। अगर आप पावर BI के अंदर पावर क्वेरी को यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली पावर BI का डेटा मॉडल के अंदर आप डेटा को लोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। Shikhar, we cannot load it to the Outlook. नहीं, आप आउटलुक के अंदर लोड नहीं कर सकते, लेकिन Okay. आप डिजायर्ड डेटा है उसको एक्सेल के अंदर आप लोड करो, पहले एक्सेल के अंदर सेव करो और बाद में आउटलुक से इंपोर्ट करो। Okay. ओके Okay. ग्रेट, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? शिखर सॉरी, एक ही क्वेश्चन है, हाउ मच जी। इज योर एक्सपीरियंस इन द पावर क्वेरी? अराउंड 3 years फ्रॉम नाउ, लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है पावर क्वेरी। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े हम लोग। ओके, तो असल में प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन था ये वही इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट डाल दिया है। तो देखो आप डेटा को कहाँ कहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे दीज आर ऑल द कनेक्टर्स अवेलेबल इन पावर क्वेरी। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अलग अलग सोर्सेज से डेटा को लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कौन सा जगह मिसिंग है? ये जो एक्सट्रैक्ट का पार्ट के अंदर देखो, दीज आर ऑल द कनेक्टर्स अवेलेबल इन पावर क्वेरी, है ना? लगभग आप हर जगह से आप डेटा को लेके आ सकते हैं। ओके, सम कॉमन डेटा सोर्सेस आर एक्सेल वर्कबुक्स, XML, टेक्स्ट, JSON, फोल्डर, SQL सर्वर, MySQL, Azure, वेब, और यहाँ पर आप ODBC भी है, शेयर पॉइंट है, वो डेटा है।
अगर इससे काम नहीं हो रहा है देन यू हैव अ ब्लैंक क्वेरी, तो आप यहाँ पर कस्टम कनेक्टर्स भी आप बना सकते हैं। Just one question. So we can use an Hadoop files also over here, right? यस, आप वो भी कर सकते हैं। Hadoop is also there. There are many much and यस, Mixer code, yeah. Salesforce reports are also there. या Cool. Yeah. ओके। देन आप ट्रांसफॉर्म के अंदर देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ रिबन का स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन आपको मैं और भी डिटेल में इन सब का मतलब बताऊंगा। ओके, यहाँ पर आप देखो, आप कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं, आप सॉर्ट कर सकते हैं, कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, डेटा टाइप को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कस्टम कॉलम को ऐड कर सकते हैं, और इन्वोक कस्टम फंक्शन। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके कस्टम फंक्शंस को आप इन्वोक कर सकते हैं। आप कंडीशनल कॉलम को ऐड कर सकते हैं, आप टाइम सीरीज कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, आप डेट सीरीज डेट कॉलम्स को आप ऐड कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, पावर क्वेरी असल में इट्स अ बंडल्ड विथ मेनी पावरफुल फीचर्स। ये क्लियर है फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, Shekhar. ओके, ग्रेट। मूविंग ऑन, तो मैं आपको कुछ रियल लाइफ के मैं एग्जांपल्स बताऊंगा। तो एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर 3 कॉलम में डेटा है आपका, रैप, डेट और ये है डे। ओके, तो ये जो डेटा है ये असल में डेटा है बायोमेट्रिक सिस्टम का। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, आप कार्ड को पंच करते हैं आपके बायोमेट्रिक सिस्टम पे, है ना। जिस दिन आपने स्वैप किया है उस दिन का अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, और जिस दिन आपने मिस किया है उस दिन का अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स और एक पूरा का पूरा जनवरी महीने का आपको एक रिपोर्ट बनाना है। और रिपोर्ट में क्या रहेगा, रिपोर्ट में क्या रहेगा, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव का अटेंडेंस मिसिंग है कौन सा दिन पर। तो आप कैसे करोगे, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। सॉरी शेखर, एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ, यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम में डेटा है, रैप, डेट और डे। असल में डे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये देखो सैटरडे संडे को मुझे हाईलाइट करना था, इसीलिए मैंने ये डे कॉलम को ऐड करके रखा है। ओके, और ये डेटा है बायोमेट्रिक सिस्टम का। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, आप आपके कार्ड को स्वैप करते हैं, उस दिन का अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है। जिस दिन आप कार्ड स्वैप करना भूल जाते हैं, तो उस दिन आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, तो आपको एक ऐसा रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट क्रिएट करना है फॉर ऑल दीज रेप्स फॉर द एंटायर मंथ। तो आपको ये चेक करना है कौन सा रिप्रेजेंटेटिव का अटेंडेंस मिसिंग है डे बाय डे। We can create a formula which will be which will be matching the day attendance dates with the actual calendar years throughout the scheduled calendar year. Okay, Okay. and accordingly wherever it will be missing, so we'll formulate it like true or false, or maybe give it a condition with the employee was present or he was absent. Okay, and likewise can drag it down and run that for the absolute population of all the employees, and we can get like I'm just telling it from an Excel point of view, so we can get it done likewise we can have a summarized report from where we can see that how when the Umesh was absent. Okay, Okay. and likewise we can total it out at how is the total absence are also there. Okay, great. Great, It Ashish. can easily be done by pivot table. Exactly, I I mean, think. we can do it by pivot. Pivot table कैसे? Yeah. So basically, जहाँ पे भी date नहीं मिलेगा, we will just calculate that, right? That this person was absent. I mean, we can have pivot saying, let's say for example, Umesh है, Umesh 15 Jan को आया था, let's say 17 Jan he was not there. तो फिर 17 Jan का data जो रहेगा उसका blank रहेगा, right? And then we can highlight it accordingly that how many days he was present. Okay, और आपको सैटरडे संडे को भी इग्नोर कर देना है। हाँ, exactly. We can do a filtering over there. हाँ, आप कर सकते हैं। तो लगभग इस डेटा को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं
एंड आप इस तरीके की रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं इन एक्सेल। हम्म, बराबर है? हम्म, ओके। हाँ yes. लेकिन Yes. आप देखो इट्स आपको इंफॉर्मेशन तो पूरा मिल रहा है, बट इज इट कॉम्पैक्ट? आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं? हम्म, नहीं No. ना? ओके। नहीं। आपको लगभग कुछ इस तरीके की रिपोर्ट जनरेट करना है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेप है और यहाँ पर डेज है और टोटल डेज है। मतलब यहाँ पर देखो दिनेश ही वॉज absent ऑन 30th एंड 21st। तो टोटल 2 दिन का absent उसको दिखाना है। तो अब आप एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इज इट इजी टू परफॉर्म इन एक्सेल? No. No. So Dinesh was absent on 30 and 21, यस and Rahul was absent on 13 days. First one. यस, Okay. अच्छा, हाँ. है ना? So, I think if we will match it with the proper calendar days, then we'll get these dates, okay? And then we can just transform the dates with the we can further PO it the our table, like the यस। transform table, and then we can get these datas. Maybe not this the days which we have got on like the data type is a horizontal, okay? So for instead of that, we can have a table over there. हाँ, Or maybe we can, yeah, वो likewise. वो तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इसी फॉर्मेट में दिखाना है। शंकर, Yeah, that would be a bit challenging. यस यस। और इसके पीछे शंकर, का जी शंकर अभी जैसे कि ये जो आप डेटा बोल रहे हो तो ये ब्लैंक क्यों रखेंगे? एक्चुअली तो जैसे भी ये प्रेजेंट अटेंडेंस का जो डेटा होता है उसमें उसका कुछ तो भी ये होगा, पीएल होगा या एब्सेंट के लिए कुछ एब्सेंट होगा या विदाउट पे होगा, तो कुछ तो भी इसके लिए लिखा होगा। या ऐसे मतलब ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते ना, तो उसके अंदर मुझे निकालना है या उसी हिसाब से करना है, तो वो कैसे होगा फिर? नहीं, उसके लिए एक अलग अलग एट्रीब्यूट रहेगा ना। तो अगर आप फुल डे लीव पे हो तो उस दिन का नहीं रहेगा। अगर आप लीव पे हो, आप इमरजेंसी लीव पे हो, आप सिक लीव पे हो, तो उसके लिए एक अलग एट्रीब्यूट रहेगा। वी कैन ऐड ऑल दोस कॉम्प्लेक्सिटीज ओवर हियर आल्सो। नहीं, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मेरे पास है डेटा है अटेंडेंस का पूरे महीने भर का, तो मुझे उसका है कि नेटवर्किंग डेज निकालना है, नेटवर्क डेज निकालना, मतलब कितने टोटल वर्किंग डेज है उसके महीने में वो निकालना है। उसके बाद में उसका पेएबल डेज निकालना है। तो वो चीज सब इसमें हो सकती है क्या? वो सब चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके ओके। चलो अभी हम यहाँ पर आते हैं सेकेंड नंबर की रिक्वायरमेंट। ये भी आप कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगा। हो सकता है आपको VBA का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं देखना है, मुझे लगभग ऐसा देखना है। तो यहाँ पर जनवरी का भी है और यहाँ पर फरवरी का भी है। तब क्या करोगे? तो आप पूरा का पूरा VBA का कोड चेंज करोगे आप, नहीं तो एक्सेल में जितना भी मेहनत आपने किया है उसको वापस आपको करना पड़ेगा, Yeah, Right. है ना? true, तो true. अभी पावर क्वेरी में आप क्या कर सकते हैं, इसी एनालिसिस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप मंथ लेके आओ और एक एट्रीब्यूट, बस आपका काम हो गया। और फ्रेंड्स पावर क्वेरी कैसा है ना, हाँ पावर क्वेरी कैसा है, आपने एक फाइल से डेटा लिया, अब उसकी जगह पे दूसरा फाइल आ गया, तो आपको कुछ एडिशनल स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस रिफ्रेश करो, आपका पूरा का पूरा स्टेप्स फिर से रन होते हैं और आपको फाइनल आउटपुट मिल जाता है। एक क्वेश्चन है शेखर यहाँ पे, जैसे जी। आप बोल रहे हो कि लेट्स से, जैसे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल जनवरी के लिए मैंने एक फॉर्मेट चूज कर लिया, तो फरवरी मार्च अप्रैल मुझे सिर्फ आई जस्ट ट्राई टू एंश्योर कि वो फरवरी का फाइल वही फोल्डर में जाए, तो एंड आई हैव टू जस्ट रिफ्रेश। व्हाट इफ लेट्स से मार्च में या अप्रैल में मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया मेरे बेस फाइल में, देन कर सकते हैं ना हम, आप कंडीशनली जो भी आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो अभी 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 के लिए अजम्पशन ये है सब डेटा अपना एक ही फोल्डर के अंदर है ना? तो आगे चल के हम क्या करेंगे, हम अलग अलग फोल्डर से डेटा को लेंगे। नहीं, मैं फोल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से जनवरी में हमारे पास लेट्स से 10 कॉलम थे, मार्च में हमारे पास 16 कॉलम्स आ गए, कॉलम ए जो था इनिशियली वो कॉलम डी हो गया है, या फिर डेट फॉर्मेट चेंज हो गया, शायद नेम पहले फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम था, अभी शायद
some changes to the naming as well. तो in that situation भी हम लोगों को कोई changes करने पड़ेंगे कि इससे refresh all से हो जाए? जब आप काम कर रहे हैं तो इतनी सारी सिनेरियो को पहले कंसीडर करो Okay. और आपका मॉडल बिल्ड करो आप, तो अच्छा, उसके बाद आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, okay. ओके Clear. तो फ्रेंड्स Okay. ये क्लियर हुआ? Clear. Yes. ओके ग्रेट, ठीक है। So Shekhar, Santosh here. जी संतोष। Yeah. So shall I say something? यस श्योर। Okay. Normally, मतलब based on my experiences कि normally जब हमारे पास data आता है तो हम लोग पहले देखते हैं वो डेटा साउंड है या नहीं, मतलब डेटा जो कुछ भी अवेलेबल है उसमें कोई नॉइस है क्या, या वो डेटा पूरा साउंड है क्या। अभी अगर हम लोग ये डेटा देखेंगे तो ये डेटा में कहीं कहीं डेट्स नहीं है, कहीं वो प्रेजेंट है, कहीं एब्सेंट है। तो ये जो नॉइस है डेटा के अंदर, यानी जहां पर वो एब्सेंट है, जब हम उसमें से वो एब्सेंट वाले डेटा को निकाल दे या उसको एड्रेस करेंगे तब हमारा पूरा डेटा साउंड हो जाएगा। Yes. And then we can go ahead and compile the data and then produce results. Yes. Yeah, और that's all what I wanted to say. Yes. और यहाँ पर ना मैं आपका जो भी आंसर था उसको मैं और थोड़ा सा एलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो पावर क्वेरी के अंदर ना ऐसे बहुत सारे हैंडी फीचर्स हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि आपका डेटा साउंड है या नहीं है। तो यहाँ पर आप हर एक कॉलम का क्वालिटी देख सकते हैं, आप हर एक कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, आप हर एक कॉलम के अंदर यूनिक कितने हैं और डिस्टिंक्ट कितने हैं आप ये देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ एरर्स है कि आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स? Okay. Thank you, Shekhar. Yeah, these are very handy features available in Power Query. मैं आपको थोड़ी देर में मैं डेमो भी दे देता हूँ उसका। ओके Okay. ठीक है। कंसिडर दिस एग्जाम्पल, डेटा कंसोलिडेशन एंड समराइजेशन। तो यहाँ पर आप डेटा को देखोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है और जैन टू दिसंबर यहाँ पर कॉलम्स में है और यहाँ पर सेल्स डेटा है फॉर एग्जांपल। तो ए डेटा है साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, 4 अलग अलग शीट में। तो अभी ए डेटा को आपको क्या करना है, समराइज करना है। तो आप कैसे करोगे फ्रेंड्स? यूजिंग एक्सेल नॉलेज। I shall drag in the data to one file, maybe into different sheets, then make a common PO between them, okay, and then analyze between their PO, which should be there in the Excel. So that is what, to the best of my understanding, we can do if it is in the different workbooks or worksheets, right? Yeah, and then accordingly we'll wrangle the data and analyze the report. Yeah. ग्रेट। चार शीट के अंदर डेटा है तो आप इजीली एक काम कर सकते हैं। ओके लेकिन मान लेते हैं 10 अलग अलग शीट में डेटा है। सफेद कलर की थैली। सॉरी, Still we can do it, right? स्टिल यू कैन डू दैट। हाँ लेकिन आपको वो मेहनत फिर से करना पड़ेगा। हाँ, yes. ओके ओके चलो ठीक है। अगले महीने में नया फाइल आ गया, फिर से 10 अलग अलग शीट में डेटा है। तो इस सिनेरियो में इस सिनेरियो में आप फिर से मेहनत करना पसंद करोगे? In that scenario, I'll try to make it one summarized sheet from where I'll, instead of making a PO, I'll try to formulate it with the formulas. Okay, so every time I'll just refresh the sheets where I'll put the data, and automatically in the formulated sheets. Okay, so the required data will get caught up, and accordingly I can get the summarized analyzed report. ठीक है, तो आप एक मास्टर वर्कबुक बनाना चाह रहे हैं और Yes, correct. अलग अलग शीट का रेफरेंस आप देना चाह रहे हैं। Yes. हाँ आशीष, कैसा है ना, इट वर्क। It would take huge time for sure, I know that. हाँ इट वर्क्स, लेकिन एक नया शीट आ गया तो आपको वो सारे मेहनत फिर से करना पड़ेगा। We can also agreed. use the VBA coding for this thing, right? Very good. If you want to consolidate the sheets, and even if the sheets are added, like next month there are more sheets, we can make the code dynamic as per the requirement. Yes, I was expecting this answer. तो नेक्स्ट क्या होगा, आपके लिए VBA अवेलेबल रहेगा, करेक्ट? और PO भी यूज कर सकते हैं। Yeah, right. Yes, ठीक है। तो
लेकिन VBA एक लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर VBA सीखना पड़ेगा। लेकिन आप ये चीज़ को भी पावर क्वेरी में अब बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये डेटा को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और आप कुछ इस तरीके का समरी रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रीजन आ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है, और यहाँ पर जैन टू दिसंबर का सारे के सारे कंबाइंड फिगर्स आ रहे हैं। ओके, या कुछ इस तरीके का समरी रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो मंथ्स कॉलम्स में थे, अब ये रोज के अंदर आ गए, और इसको अलग अलग डायमेंशन से आप इसको समरी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ हम मंथ वाइज हम क्या कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें विद इन अ फ्यू क्लिक्स हो रहे हैं। आपको कुछ कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें अवेलेबल है, बस उसको सेलेक्ट करो आप। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर। ओके, ग्रेट। अभी एक एग्जांपल हो गया, आपका डेटा अलग अलग शीट में है, लेकिन हो सकता है आपका डेटा अलग अलग वर्कबुक में है। तो इस केस में आपका सेम VBA कोड काम करेगा? नहीं, we'll have to modify वर्कशीट्स की जगह वर्कबुक लगेगा। हाँ, तो अलग अलग वर्कबुक में भी है तो भी आप एक काम कर सकते हैं। आपका डेटा अलग अलग फोल्डर्स में है तो भी आप एक काम कर सकते हैं। आपका डेटा अलग अलग डेटाबेस के अंदर है तो भी आप काम कर सकते हैं। अलग अलग वेब पेजेस के अंदर है तो भी आप एक काम कर सकते हैं। अलग अलग डेटाबेस SQL सर्वर के अंदर है तो भी आप एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो हाउ पावरफुल इट इज? Exciting? Yeah, and time saving. I would say. Yes. ठीक है, मूविंग ऑन। तो पावर क्वेरी को और एडवांस बनाता है दिस सिनेरियो, वर्किंग विथ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो यहाँ पर एक सैंपल डेटा है, तो यहाँ पर जैन से लेकर दिसंबर तक टेबल्स है ना। तो यहाँ पर रीजन और सेल्स है यहाँ पर। तो ये टेबल्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, बस एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर रैंडम जगह पे ए टेबल को क्रिएट किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर ए डेटा को आपको समरी क्रिएट करना है आइदर बाय रीजन और बाय मंथ, तो आप कैसे करोगे? पहले इसको एक कनेक्टेड डेटा बना सकते हैं हम लोग, लाइक एक और शीट में सारा कंसोलिडेट करके बेसिकली, एंड देन उस पे फिर समरी का पिवट्स कैन बी यूज्ड ऐसे। Okay. Or we can use the region as an identifier, and from where we can drag the data to one table or maybe to one sheet, and then further analyze it. और मंथ का अमेंड कर सकते हैं। Likewise, we'll also drag. So once we'll drag the data from the regions wise, okay. Accordingly, the month will also get moved, okay, and we'll have the further parameters also, like which month, which region, okay, and for which and likewise, I just wanted to say that we can drag the data from an identifier from here, and then further make a master data, and then we can further analyze it. ओके, ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। Obviously, yeah. And this is not the permanent thing, like not an automated sort of thing. Yes. Yeah. देखो, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं, और ए डे सेल्स नंबर्स जो है ना, इसको आपको एग्रीगेट करना है बाय क्वार्टर। तो कैसे है ना, आपका जैन फेब मार्च आपको क्वार्टर 1 के अंदर आएंगे, अप्रैल मई जून क्वार्टर 2 के अंदर। अगर ऐसा कुछ एनालिसिस आपको करना है और आपको दिखाना है ये प्रेजेंटेशन एक पाई चार्ट या डोनट चार्ट के अंदर, तो इजीली कर सकते हैं आप। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉट इजी। हाँ, या लेकिन इस तरीके के रिक्वायरमेंट आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन पावर क्वेरी, लाइक दिस रिपोर्ट है ना, और लाइक दिस रिपोर्ट है बढ़िया। ओके, देखो अनस्ट्रक्चर्ड एग्जांपल का सिनेरियो का और एक एग्जांपल है यहाँ पर। तो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है,
तो यहाँ पर कंपनी के अंदर लिखा है AFCKS, यहाँ पर विप्रो और यहाँ पर लिखा है इन्फोसिस। तो पहली जगह पे CO लिखा है, यहाँ पर COM लिखा है और यहाँ पर COO लिखा है। तो कुछ भी चीजें स्टेबल नहीं है यहाँ पर, ओके। लेकिन इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं और एक ही टेबल आप बना सकते हैं, लाइक दिस। क्लियर है फ्रेंड्स? Yeah. Yes. Yes. ओके, Yes. ग्रेट ग्रेट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्किंग विथ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हमने क्या देख लिया है, एक्सट्रैक्ट देख लिया हमने, अब हमने ट्रांसफॉर्म भी देख लिया है और उसको लोड भी देख लेते हैं। तो लोड आप कहाँ पर कर सकते हैं, आप पावर पाइवट के डेटा मॉडल के अंदर आपका डेटा को लोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका डेटा जो होता है तो रियल टाइम में इस तरीके का डेटा होता है। आप यहाँ पर देखते हैं ए सेल्स का टेबल है जो सबसे पीछे दिख रहा है आपको, उसके बाद ए प्रोडक्ट का टेबल है, उसके बाद ए मैनेजर का टेबल है। तो अगर आपको ऐसा कुछ एनालाइज करना है, सेल्स बाय मैनेजर आपको देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों टेबल को साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा। यस नो? यस है ना? देखो आप ये जो सबसे जो सेल्स टेबल है ना, ID1 है, इसका आपको क्या चाहिए, आपको टोटल सेल्स चाहिए। तो यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर रेट है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट है इस टेबल में लेके आना पड़ेगा, ओके। और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप जाके आपको टोटल सेल्स मिलता है। और आपको मैनेजर वाइज देखना है तो ये मैनेजर का नाम जो भी है वो इसको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। अग्री? लेकिन एक्सेल के अंदर हम ऐसे ही काम करते हैं ना, वी लुकअप। हाँ, Yeah, right. तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। देखो ये सारे टेबल्स को ऐसे कनेक्ट करो, आप देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, कनेक्शन है अमंग ऑल द टेबल्स। और कनेक्शन का टाइप भी क्या है, देखो यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर स्टार लिखा है। इसका मतलब है दिस इज अ 1 to many रिलेशनशिप। अब ये 1 to many कैसे है, देखो तो रेप जो है, रेप टेबल में एक ही बार आएगा, लेकिन सेल्स में मल्टीपल बार आ सकता है ना? फॉर एग्जाम्पल रेप है दिनेश, तो दिनेश मल्टीपल बार कस्टमर्स को सामान बेच सकता है। अग्री? हाँ, तो इसलिए यहाँ पर रिलेशनशिप कौन सा है, 1 to many रिलेशनशिप। और यहाँ पर क्या है, नहीं समझ में। हाँ, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर many है, तो इससे 1 to many रिलेशनशिप। तो रेप TBL रेप में एक ही बार आएगा, लेकिन TBL सेल्स में बहुत बार आएगा, ओके। और ए जो लिखा है दिस इज अ फिल्टर डायरेक्शन, एरो जो है ना दिस इज अ फिल्टर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर आप ए टेबल को फिल्टर करोगे तो ए टेबल भी फिल्टर हो जाएगा, ओके। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ए फिल्टर डायरेक्शन को भी आप रिवर्स कर सकते हैं या बोथ कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 to many होता है, 1 to 1 होता है, many to 1 होता है और many to many रिलेशनशिप भी यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, ओके। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन we need to use the appropriate relationship and the filter direction. Is that clear? Yes, sir. अगर आप Yes, sir. हाँ, और ये सब चीजें कहाँ पर आ रही है, ये पावर पाइवट के अंदर आ रही है। और इसको इन शॉर्ट हम बोलेंगे डेटा मॉडलिंग। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग। और जैसे एक बार आपका मॉडल बन के तैयार हो जाता है तो आप इस तरीके की रिपोर्ट आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज आपको टोटल सेल्स दिख रहा है और यहाँ पर देखो प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ पर मैनेजर भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको टोटल सेल्स दिख रहा है। और ये सब चीजें कैसे हो पा रही है, विथ यूजिंग अ सिंगल डेक्स एक्सप्रेशन। शंकर जी, इसमें अगर मुझे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह ऐसा कुछ चाहिए तो मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, अभी देखो ये डेटा आपके एक्सेल के अंदर है, तो एक्सेल के अंदर जो भी चार्ट का फंक्शन है आप यूज कर सकते हैं उसको, है ना? So sir, are we learning graphics as well? I mean the visuals. नहीं, हम ग्राफिक्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ एडवांस एक्सेल।
एक बार आपके पास डेटा आ गया तो आप चार्ट तो कैसे भी बना सकते हैं। ओके ओके ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, ये पूरा का पूरा मॉडल एक सिंगल डेस्क के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये सारे टेबल्स इंटर रिलेटेड है और हमने यहाँ पर रिलेटेड फंक्शन भी यूज किया है। और ये सब चीज़ें ना हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपना जो कोर्स रहेगा दैट इज 100% प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच। कैसा रहेगा फ्रेंड्स? प्रैक्टिकल बेस्ड। यस ठीक है। तो एक कोर्स डिटेल्स है। तो जैसा मैंने आपको बताया 100% प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच और टाइमिंग रहेगा नून फ्रॉम 2 to 5:30 एवरी सैटरडे और ड्यूरेशन रहेगा अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का। ओके और इसका फीस है 10,000 रुपये और यहाँ पर 10% डिस्काउंट अप्लीकेबल है इफ द फुल पेमेंट इज मेड विद इन अ वीक ऑफ बैच स्टार्ट डेट। शंकर जी इसमें मतलब ग्राफिक जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इसमें कोर्स में है ही नहीं है या एक क्या वो तो उसके ये सॉफ्टवेयर में ही नहीं है? नहीं देखो, पावर क्वेरी बेसिकली क्या है, ये एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो अभी हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो भी आपका लोड पार्ट है वो एक्सेल रहेगा। तो जैसे आपका डेटा एक बार आ जाता है तो एक्सेल के अंदर जो भी चार्ट का फंक्शंस अवेलेबल है उसको यूज करके आप ग्राफिकल व्यू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है और चार्ट्स जो दिखते हैं ना उससे आप चार्ट्स बना सकते हैं। Shikhar, I have one question. जी That are we going to look into the extraction of all different types of data, like the Oracle and the HANA and the Azure and other things? यस देखो आप We यहाँ are पर going to जाओगे see. गेट डेटा Mhm. और यहाँ पर आप करोगे देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। फ्रॉम Okay. फाइल है, फ्रॉम डेटाबेस है, फ्रॉम अजूरी है, ऑनलाइन सर्विसेज है और अदर सर्विसेज है। So from Oracle and other things we are going to see, right, in our this training. ओरेकल नहीं देखेंगे क्योंकि मेरे पास वो डेटाबेस नहीं Okay. है, लेकिन हम Okay. एसक्यूएल सर्वर देख सकते हैं। SQL Server. And what about the HANA or Azure? Any example we can take on यस that? देखो ये असल में कनेक्टर्स है। आप कोई भी Okay. एक कनेक्टर के साथ आप कनेक्ट करना सीख लो तो बाकी सब Cool. जगह पे भी सेम सेम एप्लीकेशन रहता है उसका। Great. Yeah. ओके ओके Yeah, sure. शंकर जी तो इसमें अगर हमारे सिस्टम में अगर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो फिर हम डेटा कैसे ले सकते हैं? हाँ, आपका सिस्टम पे नहीं है तो आप सर्वर से ले सकते हैं। अगर आपके पास सर्वर के क्रेडेंशियल्स है तो भी आप ले सकते हैं। नहीं पर लेकिन हम अभी जैसे मेरा पर्सनल लैपटॉप से मैं सीख रहा हूँ तो मेरे पास तो सिर्फ एक्सेल के अलावा दूसरा कोई सिस्टम इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो अभी जैसे कि आप कोई दूसरे डेटाबेस से अगर डेटा उठा रहे तो ये प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं फिर हमारे डेस्क पे? तो आपका आपके पर्सनल लैपटॉप पे आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना? एसक्यूएल सर्वर वगैरह। यस जो चीजें You हैं can install actually a SQL database server, like a quick data, any data you can prepare there, and just that this functionality is there on the it's universal. You can do it on your personal laptop also. हाँ आप कर सकते हैं ना, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर जो है दैट्स अ फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। सर अभी आप क्या एक एग्जांपल देख सकते हैं क्या हम प्रैक्टिकल अभी राइट नाउ? कैन वी सी एग्जांपल लाइव? हाँ हाँ आप यहाँ पे करके दिखा सकते हैं? करेंगे हाँ करेंगे हम लोग राजेश जी। Okay. एनी अदर And क्वेश्चन? I don't see that get data function in Excel in my version. So कौन सा where can I see वर्जन है? that? कौन सा वर्जन है आपका? 2016 ही है ये। तो मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है, get data नहीं दिख रहा है। अच्छा और ठीक है वो तो बात की बात है, जब कोड करेंगे तब का बात है। लेकिन ये लाइव एग्जांपल दिखा सकते हैं क्या कैसे करते हैं? हाँ हम एग्जांपल भी करेंगे अभी। और कैलकुलेशंस वगैरह भी होती है क्या इसमें? सम एवरेज वगैरह सब कुछ मान लीजिए टेबल कंबाइन करने के अलावा कुछ कैलकुलेशंस करनी हो डेटा पे तो कैन वी डू दैट कैलकुलेशंस आल्सो? यस बहुत सारी चीजें कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी एक लाइव एग्जांपल। हाँ अभी एक एग्जांपल ले ले हम लोग। यस यस प्लीज गो अहेड। ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पर देख लीजिए। फ्रेंड्स अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जो भी चीज़ें हैं आप थोड़ा सा लाइटली ले लीजिए, क्योंकि जैसे अपना कोर्स शुरू होता है हम हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट को हम बहुत ही डिटेल में हम स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट। तो यहाँ पर पहले एक एक्सेल का फाइल ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं डेटा। अब ये फाइल को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं मंथ और यहाँ पर लिखते हैं सेल्स और यहाँ पर हम लिखते हैं जॉन और इसको ऐसा ड्रैग करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स हम रैंडम नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल और ये जो है ये सम रहेगा सिंपल। तो डेटा सबको क्लियर है? यस ओके यस क्लियर। ओके, इसको बंद कर देते हैं और अपना वापस फोल्डर के अंदर जाते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं 2017। तो कौन सा साल का डेटा है ये? अब ये हो गया 2018 का और ये हो गया 2019 का। थोड़ा फॉन्ट बड़ा करो। हाँ आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स? हाँ ओके ग्रेट। चलो अभी अपने पास 3 अलग अलग साल का क्या है रिपोर्ट्स है यहाँ पर। तो अभी हमको करना क्या है, हमको ये तीनों फाइल में से डेटा को लेना है, कंसोलिडेट करना है और एग्रीगेट करना है। क्लियर? यस क्लियर। ओके ग्रेट। तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं डेटा, गेट डेटा, फाइल। अब देखो अभी हमको एक्सेल वर्कबुक से लेना है क्या? अभी ये सिंगल वर्कबुक से लेना है तो हम ये चूज करेंगे, लेकिन अभी हमको क्या करना है अलग अलग वर्कबुक से लेना है और वो सारे अलग अलग वर्कबुक्स कहाँ पर है? एक फोल्डर के अंदर है। तो अभी हम यहाँ पर फ्रॉम फोल्डर का ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम फोल्डर। फ्रॉम फोल्डर तो अभी आपको यहाँ पर क्या बताना है, फोल्डर का पाथ बताना है। तो आप यहाँ पर जाओ वो फोल्डर का पाथ कॉपी करो, आप कॉपी और यहाँ पर डाल दो पेस्ट और ओके। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो जितने भी फाइल्स है एक डायलॉग बॉक्स के अंदर वो रीड हो गए। तो अभी आप यहाँ पर कंबाइन करोगे तो डायरेक्टली वो कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन हमको वो नहीं करना है। अब हमको जाना है पावर क्वेरी के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर। तो फ्रेंड्स वो बटन्स का क्या मतलब है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, कंबाइंड, लोड और ट्रांसफॉर्म का। तो आप यहाँ पर देखोगे ये असल में वो फाइल का कंटेंट है, फाइल का नेम है, एक्सटेंशन है, डेट एक्सेस्ड, मॉडिफाइड, क्रिएटेड, एट्रीब्यूट्स और पाथ। इतने सारे डिटेल्स आपको मिल रहे हैं। ये किसके रिलेटेड डिटेल्स है ये? फाइल रिलेटेड। स्क्रीन करो ना ये। These are work files. Okay, these are all the details related to the files, है ना? तो अब ए फोल्डर के अंदर एक दूसरा भी फाइल आता है, फॉर एग्जांपल CSV का फाइल आ गया या एक्सेस का फाइल आ गया या HTML का फाइल आ गया। तो अभी हम वो फाइल को कंसिडर करना चाहिए क्या? Not really. नहीं ना। तो अभी आप यहाँ पर जाओ, ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पर फिल्टर लगा दो। तो टेक्स्ट फिल्टर आप यहाँ पर बता दो इज इक्वल टू, और एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .xlsx होना चाहिए। ओके, बस आप ये बता दो और ओके पे क्लिक कर दो। अभी असल में आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये स्टेप यहाँ पर ऐड हो गया। तो फ्रेंड्स आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं ना, तो एक सेपरेट स्टेप्स के अंदर ऐड होते जाते हैं यहाँ पर। ओके,
जब आप रिफ्रेश करते हैं तो सबसे पहले ए स्टेप रन होगा, उसके बाद ए स्टेप रन होगा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। ए टॉप टू बॉटम अप्रोच में रन होते हैं सारे स्टेप्स। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So just one thing that we have kept this query data in a different folder, and the extraction data was on a different folder, correct? नहीं, फोल्डर के अंदर नहीं है, ये एक ब्लैंक वर्कबुक ओके, अभी होगा। ब्लैंक है, अभी हमने सेव नहीं किया है इसको, बट नहीं, अगर हम सेव करेंगे इसको कहीं और दूसरे फोल्डर में तो भी चलता, करेक्ट? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमेशा जब रन करेंगे तो वो उसी फोल्डर से जाके उठाएगा, करेक्ट? यस, करेक्ट, ओके। ग्रेट। और आगे चल या के हम क्या करेंगे, ये फोल्डर का पाथ भी है, इसको भी हम डायनामिक बनाएंगे। कूल, इट्स ग्रेट, या ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमको करना क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो असल में ए फाइल है ये, है ना। अब ए फाइल के अंदर जो भी डेटा आ रहा है उसको कंबाइन करना है। बस यहाँ पर आप क्लिक करो और ए शीट के अंदर डेटा है और डेटा का प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। बस इतना करना है और ओके पे क्लिक करना है। सर ये एक पर समझा नहीं, मतलब कंबाइन कैसे किया हमने, मतलब क्या किया बेसिकली? आशीष अभी हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं, है ना। मैं आपको सिंपली इसका एप्लीकेशंस में बता रहा हूँ। श्योर, गॉट यू, सॉरी, माय बैड। हाँ। तो अभी आप देखोगे एक कौन सा सोर्स से डेटा आ रहा है, मंथ पूरा आ गया और यहाँ पर सेल्स नंबर्स भी आ चुके हैं, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सोर्स दिख रहा है थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे, ईयर। देखो जैसे आप नाम चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक स्टेप ऐड हो जाएगा, रीनेम्ड कॉलम्स। अब आप यहाँ पर देखो ये जो टोटल है, टोटल आपके एनालिसिस में दिखना चाहिए क्या फ्रेंड्स? नहीं, क्योंकि ये टोटल आप खुद होके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से टोटल को हटाएंगे। ओके, अब टोटल चला गया। अब ये जो ईयर है, तो ईयर के अंदर डॉट XLSX लिखना ठीक रहेगा? नहीं, आप कॉलम को सेलेक्ट करो, जैसे एक्सेल के अंदर फाइंड रिप्लेस करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पर रिप्लेस वैल्यूज क्या फाइंड करना है, डॉट XLSX रिप्लेस विथ ब्लैंक, आप ओके कर दो। तो पूरा का पूरा आपका कॉलम क्लीन एंड नीट दिख रहा है अभी। ओके, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ए डेटा को समराइज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसा पाइवट टेबल बनाते हैं वैसा करना है। मंथ रहेंगे रो में, ईयर रहेगा कॉलम के अंदर और यहाँ पर रहेगा टोटल सेल्स, वैसा करना है। या आपको ईयर बाय इसका सम करना है, या मंथ बाय इसका सम करना है, या एवरेज करना है, या काउंट करना है, या मीन निकालना है, मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, क्या करना है फ्रेंड्स आपको, आप बताओ। Let's take it out a mean with an average, so I think that would cover major of the things, right? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, मंथ वाइज एवरेज लेके आएंगे। ओके, तो अभी आपको बस यहाँ पर जाना है ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर ग्रुप बाय। ग्रुप बाय कहाँ पर देखने को मिलता है फ्रेंड्स? लेफ्ट में, ट्रांसफॉर्म के अंदर। हाँ, नहीं, अगर आपको पावर क्वेरी नहीं पता है तो ग्रुप बाय इज अ कीवर्ड इन SQL, है ना। बस आपको वहां पर क्वेरी लिखना पड़ता है और आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। ग्रुप बाय, नया कॉलम का नाम क्या होगा, एवरेज सेल्स लिखो आप। ऑपरेशन क्या रहेगा, एवरेज किसका, सेल्स का। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, डेटा आपका बन के तैयार। बस आपको करना क्या है, पुराना डेटा चला गया, अगर मुझे पुराना डेटा भी रखना हो तो? नहीं, यहाँ पर है ना वो, ये देखो, ये आप कभी भी पीछे जा सकते हैं ये स्टेप्स के अंदर। ओके, तो आपका ये एंड रिजल्ट था, आप यहाँ पर चले गए। बस आपको करना क्या है, इसको लोड करना है, होम क्लोज एंड लोड। तो आपको यहाँ पर एवरेज सेल्स यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बस आपके पास डेटा आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जाओ इंसर्ट और यहाँ पर जो भी आपको चार्ट दिखाना है आप चार्ट सेलेक्ट करो। बार चार्ट कैसे रहेगा इस केस में,
बार, चलो ए चाहिए तो आप ए ले लो, बराबर है। आपको जो भी फॉर्मेट करना है, दिस इज ऑल एडवांस एक्सेल नॉलेज। डेटा लेबल्स को ऐड करना है, आप वो करो। इसको फॉर्मेट करना है, अल्ट ओ ई, इसको नंबर विथ 2 डिजिट्स, आप वो कर दो। फ्रेंड्स, आपको जो भी करना है ना, इसके आगे एक्सेल शुरू होता है, लेकिन अपना क्रूशियल पार्ट कौन सा था? ए था, The data wrangling which we did. शंकर get the calculations. जी। चलो सब हाँ, शंकर एक मिनट, देवेंद्र एक मिनट प्लीज। मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ, बाद में आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। इज दैट ओके? देवेंद्र, इज दैट फाइन? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, इसको बाय क्वार्टर और बाय ईयर आपको एनालाइज करना है। क्या करना है? बाय ईयर एंड बाय क्वार्टर। यस, तो कैसे करोगे आप? तो अभी आप डेटा के अंदर देखोगे, वहां तो क्वार्टर है ही नहीं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मैपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मंथ और यहाँ पर हम लिखते हैं क्वार्टर। ओके, तो यहाँ पर आप लिखो जैन और इसको आप ड्रैग कर दो। ये 3 आना चाहिए क्वार्टर 1 के अंदर, ये 3 आना चाहिए क्वार्टर 2 के अंदर, ये 3 आना चाहिए क्वार्टर 3 के अंदर, और ये 3 क्वार्टर 4 के अंदर, बराबर है। अब इसको भी लेके जाना है पावर क्वेरी के अंदर, अल्ट एपीटी। देखो वो चीज यहाँ पर भी आ चुका है, कहाँ पर है? ये वाला। तो अभी हमको करना क्या है, ये दोनों को मर्ज कर देना है ना। तो अभी ए स्टेप है, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी इसका कुछ जरूरत नहीं है। इसको आप डिलीट कर दो। तो यहाँ पर ईयर है, यहाँ पर आपको क्वार्टर लेके आना है, लेकिन ए टेबल और ए टेबल में क्या कॉमन है? मंथ। हाँ, आप एक्सेल के अंदर क्या करते थे? VLOOKUP। लेकिन आपको देखो यहाँ पर क्या करना पड़ता है। यहाँ पर आप जाओ होम और यहाँ पर मर्ज क्वेरीज। जैसा मैं एसक्यूएल की बात कर रहा था, 2 अलग अलग टेबल को ज्वाइन करना है, तो आप कैसे करोगे? यस, आपको यहाँ पर मर्ज करना पड़ेगा। ये आपका पहला टेबल हो गया और ये आपका दूसरा टेबल हो गया। दोनों में क्या कॉमन है? मंथ। आप दोनों को ऐसे सेलेक्ट करो, बस आपका काम हो गया। तो आप यहाँ पर देखोगे, इसके एसोसिएशन में जो भी कॉलम्स मिल रहे हैं दूसरे टेबल के अंदर, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। जान के एसोसिएशन में जो भी कॉलम्स मिल रहे हैं दूसरे टेबल के अंदर, उसका डिटेल्स आपको नीचे प्रीव्यू के अंदर दिखा रहा है, क्योंकि वो टेबल के अंदर 2 कॉलम्स थे अपने, एक था मंथ और दूसरा था क्वार्टर। लेकिन अभी आपको दोनों कॉलम की जरूरत है क्या फ्रेंड्स? नहीं, आपको सिर्फ क्वार्टर चाहिए ना? क्वार्टर चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक्सपैंड कर दो, आप यहाँ पर एक्सपैंड करो। आप यहाँ पर मंथ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्वार्टर चाहिए, बस आप ये बता दो। ओके, अब इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाना चाह रहे हैं। कैसे आना चाहिए? ईयर हाइपन क्वार्टर। तो ये कॉलम की जरूरत है अभी। तो यहाँ पर आप जाओ ऐड कॉलम और कस्टम कॉलम। तो यहाँ पर आप बता दो ईयर क्वार्टर, तो आप बता दो ईयर आना चाहिए और इसके साथ जोड़ना है तो एंड, जैसे एक्सेल के अंदर हम करते हैं, और बीच में हाइपन आना चाहिए जैसे एक्सेल के अंदर हम लिखते हैं वही है। एंड क्या आना चाहिए? क्वार्टर, बराबर है फ्रेंड्स? सिंपल फॉर्मूला, बस आपको इतना लिखना है और ओके पे क्लिक करना है। देखो एक नया कॉलम आपको तैयार मिल रहा है। ओके, पिछली बार हमने क्या किया था, इसका एवरेज लिया था, इस बार हम इसका सम ले लेते हैं। ओके, और हमको इस बार इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, फिर से हमको ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय, आप टोटल सेल्स ले लेते हैं, टोटल सेल्स। अब करना है सम। देखो इतने सारे एग्रीगेशन फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर सम किसका? सेल्स का। बस आपको इतना बताना है फ्रेंड्स। आप ओके कर दो।
बस आपका डेटा बन के तैयार। यहाँ पर जाओ, क्लोज एंड लोड। शेखर सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ठीक है, अभी देखो आपका ये टेबल अपडेट हो गया और आपका चार्ट भी अपडेट हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, अब नया सिनेरियो देखते हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं 17, 18, 19। अभी अपने पास दूसरा डेटा आ गया और इसका नाम हम देते हैं 2020। ओके, 2020 भी आ चुका है अभी। अब आपको क्या करना है? इतनी सारी चीजें फिर से करना है? रिफ्रेश ऑल। आपको यहाँ पर जाना है डेटा एंड जस्ट क्लिक दिस वन बटन, रिफ्रेश ऑल। देखो 2020 का भी डेटा यहाँ पर अपडेट हो गया। हाउ सिंपल इट इज। करेक्ट। आपके फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स आने दो, अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना मेहनत आपने एक बार कर लिया तो बस इतना काफी है। तो हर बार आप क्या करोगे, यहाँ पर डेटा के अंदर जाओगे और रिफ्रेश करोगे। ओके। लेकिन यहाँ पे फाइल फॉर्मेट सेम ही चाहिए, राइट सर? नहीं, अभी मैं डेमो के लिए मैं आपको सेम फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बता के रखा है। ओके। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, बहुत सारे सिनेरियो लेंगे। कुछ कॉलम्स एक रिपोर्ट में है, कुछ कॉलम नहीं है, कुछ कॉलम को अलग नाम से बोल दिया गया है और दूसरे रिपोर्ट में कुछ अलग नाम से उसको मेंशन किया गया है, है ना। तो कुछ महीने एक रिपोर्ट में मिसिंग है और कुछ महीने एक रिपोर्ट में बहुत बार आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी का सेल्स बहुत बार आ रहा है। ये सारे सिनेरियोज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके जी। देवेंद्र, आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा होल्ड पे रखा। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। तो इसमें मुझे क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कि ये जो टेबल्स है, अभी ये टेबल्स अभी एक्सेल फॉर्मेट में है, बराबर है। तो ये अगर सपोज एक टेबल है, अगर कुछ एक्सेस फॉर्मेट में है, तो मैं वो तीनों का कनेक्शन लगा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं आप। और ये जो जैसे कि अभी जो ये मैंने ये वगैरह सब बना है और उसके बाद में जो एडवांस ऐसे फीचर्स है अभी, जैसे कि मैं रिपोर्ट्स में वगैरह कुछ जो भी यूज करता हूँ, तो वो सब चीजें मैं इसमें यूज कर सकता है। हाँ देखो, मैं आपको एक बेसिक चीजें बताता हूँ। जैसे आप गेट डेटा और यहाँ पर जो भी कनेक्टर आप चूज करते हैं ना, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेरी क्रिएट होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डेटा नाम का एक क्वेरी है और टेबल 2 नाम का एक क्वेरी है। तो जैसे ही एक बार यहाँ पर आ गया पावर क्वेरी के अंदर, तो बस इसका सोर्स चेंज रहेगा। अभी ए डेटा एक्सेल शीट से आ रहा है और ए डेटा फोल्डर से आ रहा है, बट स्टिल दीज टू आर नॉर्मल क्वेरीज। आप जनरली जो काम करते हैं वो सारे चीज आप इसके साथ भी कर सकते हैं। ये कभी भी पावर क्वेरी ये नहीं देखता है कि डेटा कहां से आ रहा है, ये हमेशा लास्ट स्टेप को रेफर करेगा। क्लियर है देवेंद्र? हाँ शंकर, इसमें अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा है कि अभी आप जितनी ये अभी डेमो बताया, अभी आप पावर क्वेरी बोल के एक जो है कोर्स, लेकिन यहाँ पे एक भी क्वेरी लिख तो नहीं बताया। तो ये विदाउट क्वेरी मतलब आप जैसे कि क्लिकिंग के ऊपर ये सब एक क्वेरी क्रिएट होता है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये सब तो चीजें, ये सब चीजें है ना, इसके पीछे एक लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है फ्रेंड्स, एनी गेस? DAX है, I mean M query, M लैंग्वेज। हाँ, और उसको हम बोलते हैं डेटा मैशअप लैंग्वेज। तो ये सब चीजें आप यूआई से कर रहे हैं। जैसा आप इसको ऐसा रिलेट करो, तो आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वीबीए का कोड लिख रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है और कौन सा बेहतर है? कोडिंग लिखना इज गुड देन रिकॉर्डिंग मैक्रो। वेरी गुड। तो अभी जो हमने किया है ना, हमने सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड किया है यूजिंग द टूल्स अवेलेबल इन द रिबन। लेकिन ये सारे चीज आप कोडिंग से भी कर सकते हैं। और कोड कहाँ देखोगे आप? होम में जाओ और एडवांस एडिटर। तो आप देख रहे हैं इतने सारे काम के पीछे इतने सारे स्टेप्स का कोड है यहाँ पर।
तो आगे चल के हम क्या करेंगे, ऐसे ब्लॉक्स हम खुद बनाएंगे। हम जो ओके ओके हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम ये सारी चीजें हम बनाएंगे। यहाँ पर लेट का मतलब क्या है, यहाँ पर इनका मतलब क्या है, यहाँ पर सोर्स का मतलब क्या है, इसको ऐसा क्यों लिखना है, यहाँ पर इज इक्वल टू क्यों आ रहा है, ये डबल कोट्स क्यों आ रहा है, ब्रैकेट क्यों आ रहा है, कॉमा क्यों आ रहा है। क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है फ्रेंड्स, इसके भी कुछ सिंटैक्सेस होते हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है अगर मैं खुद से लिखता हूँ और ये इससे करेंगे तो? नहीं, डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो टूल से आप करते हैं ना, दैट्स लिमिटेड टू बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ एडवांस्ड करना है, आपको कंडीशनली कॉलम को सेलेक्ट करना है ना। अगर ए रिपोर्ट है तो ए कॉलम्स चाहिए, अगर रिपोर्ट 2 है तो दूसरा कॉलम्स चाहिए। अगर कंडीशनली ऐसा कुछ काम करना है, देन हमको ये सारा काम एम कोड के थ्रू करना पड़ेगा। तो उस केस में जी मेरा एक क्वेश्चन है ये कि दोस्त हु आर वर्किंग ऑन VBA, जो लोग VBA पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हैं एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस थिंग फ्रॉम VBA थ्रू VBA, है ना। अभी उन लोगों को पावर क्वेरी अगर VBA से कंपैरिजन किया जाए, विच लैंग्वेज इज बेटर, पावर क्वेरी और VBA? और अगर वो VBA से कर रहे हैं तो उन्हें पावर क्वेरी करने की आवश्यकता है या नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन। देखो, बिल्कुल आवश्यकता है। और कैसा है ना राजेश, VBA और पावर क्वेरी हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावर क्वेरी का अलग एडवांटेजेस है और VBA का अलग एडवांटेजेस है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें आप दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कर सकते हैं। जैसा डेटा को कंसोलिडेशन करना है, आप पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं, आप VBA के अंदर भी कर सकते हैं। जैसा आप कुछ देर पहले मैंने आपको ग्रुप वीकडेज वाला रिपोर्ट मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो आप VBA के अंदर भी कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन कैसा है, VBA इज अ फुल फ्लेक्स्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके लिए हमको प्रॉपर वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। लेकिन पावर क्वेरी के अंदर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो सारी चीजें यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, आप बस क्लिक करो, आपका काम हो रहा है। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस यस। हाँ, और कभी भी आप ऐसा दोनों को साइड बाय साइड मत देखो, VBA और पावर क्वेरी को, दोनों का अलग अलग एडवांटेजेस है और अलग अलग डिसएडवांटेजेस है। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग डैक्स सीखेंगे और उसकी मीनिंग्स एंड कहाँ पे कब यूज करना है? हाँ हाँ, हम डैक्स भी सीखने वाले हैं इसके अंदर। ओके Shikhar, what is DAX and what is M then? M देखो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो होता है दैट्स अ M, दिस इज M। Okay. ओके, और डेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशंस। Okay. क्या है, Data analytical expression. हाँ, है ना। तो डेटा आपके बन के तैयार है, बस वो डेटा को एनालाइज करना है आपको। जैसा आपको कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया, ये वाला, ये आपका डेटा बन के तैयार है ये। अब इसको एनालाइज करना है, आपको टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है विदाउट मर्जिंग एवरी टेबल इनटू अ बिग टेबल। तो आप क्या कर सकते हैं, डेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. So basically, Power Pivot is DAX. यस। Okay. Got it. आप पूरा नहीं बोल सकते, पावर पाइवट के अंदर दो पार्ट आता है, एक होता है मॉडलिंग और दूसरा होता है डेक्स। अच्छा। मॉडलिंग का मतलब ये है कि हर एक टेबल को लॉजिकली कैसे कनेक्ट करें, और डेक्स का मतलब है कनेक्टेड टेबल को और उसके अंदर के कॉलम्स को कैसे एनालाइज करें। ओके सर, अगर मैंने ये पावर क्वेरी एंड पिवट सीखा, सो विल इट हेल्प ऑन अ पावर बीआई एज वेल? हाँ हाँ बिल्कुल। आप देखो, एक पावर बीआई डेवलपर का क्या काम होता है फ्रेंड्स आपके हिसाब से? गेस करो आप, या आप कोई पावर बीआई के अंदर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं।
पावर बीआई इज मोस्टली फॉर एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस, जैसे आपने क्वार्टर वाइज चाहिए, ईयर वाइज चाहिए, तो आई मीन And yeah, so It is a basically डायनामिकली आप डेटा प्रेजेंट कर सकते हो पावर हाँ क्वेरी में। एग्जैक्टली। डायनामिक डेटा होता है जिसके अंदर आप मतलब कोई भी कॉलम सेलेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो डायनामिकली ग्राफिकल जो भी है रिप्रेजेंटेशन डेटा पे दिखा देता है। तो So मैंने what I understood is like that in Power Query, okay, by using these Power Query functions, so whatever the analysis we can do in Office 365, we can accommodate all those things in one go over here, and we can just minimize our recurring efforts, okay, and kind of we can automate the reports or our analysis whenever the data gets changed. So a यस better wrangling feature of data. यस, आपने जितने भी आंसर्स दिए हैं एक वर्ड कॉमन था, कौन सा वर्ड था वो? Analysis, yeah. है ना? आप एनालिसिस कब कर पाओगे? जब आपके पास डेटा होता है तब आप कर पाओगे, बराबर है? ठीक है। अब डेटा कब होता है? डेटा हमेशा देखो आपको क्लीन एंड नीट फॉर्मेट में कभी भी नहीं मिलता है। आपको डेटा को बहुत सारा रैंगलिंग करना पड़ता है, आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको माइनिंग करना पड़ता है, अलग अलग टर्म्स उसके लिए है। मतलब आपको डेटा को शेप करना होता है पहले, तब जाके ए पार्ट शुरू होता है। तो डेटा को शेप करने का, अलग अलग जगह से लेके आने का, डेटा को शेप करने का काम कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? ये पावर क्वेरी के अंदर होता है। तो एक पावर बीआई डेवलपर का काम हमेशा शुरू होता है थ्रू पावर क्वेरी। अगर पावर क्वेरी नहीं है वो उसका काम शुरू भी नहीं कर सकता है ना? एक क्वेश्चन, हाँ, सॉरी एक सॉरी मिनट, हाँ सॉरी एक मिनट, मैं अभी यहाँ पर पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। देखो इसके अंदर कुछ दिख रहा है डेटा? नहीं। इसके अंदर कुछ दिख रहा है मॉडलिंग? नहीं। तो जब डेटा नहीं रहेगा तो हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर? नहीं। तो ये जो दिख रहा है आपको पावर बीआई के फ्रंट पेज पे, दिस इज पावर क्वेरी। ये क्या है? ये पावर क्वेरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको पावर क्वेरी दिख रहा है। ये जो गेट डेटा है ये पावर क्वेरी है, ये जो गेट डेटा है ये भी पावर क्वेरी है। ओके सिमिलर ही है। हाँ, जो भी ऑप्शंस हम एक्सेल के अंदर देख रहे थे वो सेम आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, ऑफ कोर्स विद सम एडिशनल फीचर्स इन पावर बीआई। ठीक है, अब आप यहाँ पर जाओ, देखो इसका कनेक्टर्स देखते हैं अभी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चलो आ गया। ये देखो फाइल, इतने सारे फाइल्स को सपोर्ट करता है पावर क्वेरी। डेटाबेसेस, इतने सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पर हना भी है, हडूप भी है, एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल। और यहाँ पर पावर प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। अजूरे, देखो ये इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऑनलाइन सर्विसेज, देखो शेयर पॉइंट है, वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो मतलब अगर यहाँ पर आपका डेटा है तो आप इजीली इसको लेके आ सकते हैं। और अदर, तो यहाँ पर भी देखो स्पार्क है, ओ डेटा है, वेब है, आर है, पाइथन है, ओलेडीपी है, ओडीबीसी है। देखो फ्रेंड्स क्या नहीं है यहाँ पर। असल में माइक्रोसॉफ्ट ने ना किसी को भी नहीं छोड़ा है। We can use this other option, like Python was there, so we can use the same in Power Query. Inside the Power Query also the Python option is there. Yes, आप कर सकते हैं। Okay, no, I'm just asking, it is there right? Power Query में। Yes, लेकिन आपको ये यहाँ पर दिखेगा, एक्सेल के अंदर नहीं दिखने वाला है। Okay. ये जो आर पाइथन का है स्क्रिप्टिंग का, आपको एक्सेल के अंदर नहीं दिखेगा। Okay, but Power BI has this feature. Yes, हाँ। Nice. चलो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ब्लैंक क्वेरी सेलेक्ट करते हैं और एक नया क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो अभी हम कहाँ पर चले गए? हम पावर क्वेरी के अंदर चले गए।
और जो फ्रेंड्स ये जो पावर क्वेरी का विंडो आप देख रहे हैं ये पावर बीआई का है, और ये जो विंडो आप देख रहे हैं वो एक्सेल का है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको मिनिमाइज होता है क्या? नहीं, चलो इसको मैक्सिमाइज कर लेते थे। तो यहाँ पर आपको देखो होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम और वीव। अब हम कहाँ पर है? एक्सेल के अंदर है। और अब पावर बीआई के अंदर आते हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, वीव, और वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन मैं ऐसा एड्रेस करता हूँ। तो एक पावर बीआई डेवलपर का काम शुरू होता है थ्रू पावर क्वेरी। आप जितना अच्छा पावर क्वेरी जानते हैं उतने अच्छे और उतने कम समय में आप डेटा मॉडल को आप रेडी कर सकते हैं। जैसे आपका डेटा मॉडल बन चुका है, तैयार है, तो आपको सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है, वो काम बच जाता है फिर। yes. तो मेजर चंक कौन सा है? मेजर चंक पावर क्वेरी है फ्रेंड्स। ओके, और एक चीज आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमने फाइल को कंसोलिडेट किया है तो पावर क्वेरी ने कुछ फंक्शंस खुद होके लिखा है। आप देख रहे हैं ये पैरामीटर है, ये सैंपल फाइल है, ये ट्रांसफॉर्म फाइल है, ये माइक्रो पावर क्वेरी ने खुद होके लिखा है। दिस इज नॉट इवन बेस्ट वे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन यह अच्छा तरीका नहीं है। जब हम अपने कोर्स में क्या करेंगे, हम ऐसा फंक्शंस अपने खुद के बनाएंगे। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर जाओ एडवांस एडिटर के अंदर, लेकिन ये हम देख नहीं पाएंगे इसका सोर्स कोड, क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड फंक्शन है। ऐसा फंक्शन हम खुद होके बनाएंगे बाय यूजिंग एम कोड। क्लियर है फ्रेंड्स? एनी डाउट्स? नहीं। ओके, ग्रेट ग्रेट। सर पीडीएफ हम कैन कनेक्ट? यस, देखो यहाँ पर गेट डेटा, कैन वी कनेक्ट पीडीएफ? यस, ये देखो पीडीएफ दिख रहा है आपको। सर मेरे 2016 में नहीं दिख रहा है पीडीएफ का ऑप्शन। हाँ, तो जैसे जैसे एक्सेल इवॉल्व होता गया वैसे वैसे ऑप्शंस आते गए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मेरा रिकमेंडेशन आप सबको ये है, कहाँ से चेक करते हैं एक्सेल का कौन सा वर्जन है यहाँ पे? आप हाँ, मैं आ रहा हूँ वही पॉइंट पे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, इफ यू हैव ऑफिस 365 इट्स वेल एंड गुड। तो इसके अंदर एक तो नए फीचर्स मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे फ्रेंड्स, वो प्रीवियस वर्जन में अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है आप वो भी देख लीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये जो आपको अलग अलग कलर में दिख रहा है, ये टेक्स्ट है, ये ब्लू में दिख रहा है, ये आपको ब्लैक में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स हाईलाइटिंग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सिंटेक्स हाईलाइटिंग। हाँ, ये प्रीवियस वर्जन में आपको नहीं मिलेगा, इवन इफ यू हैव एक्सेल 2019। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ कहां पर अवेलेबल है? MS ऑफिस 365 में। हाँ, 365 में अवेलेबल है। इसके अलावा चलो इसके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस वर्जन्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर को मिस करते हैं। क्या? देखो यहां पर मैं लिखता हूं लिस्ट, और ये जो हेल्प मिल रहा है ना, आपको हेल्प भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए रेकमेंडेड क्या रहेगा, आप ऑफिस 365 खरीद लो। अगर आप ऑफिस के लैपटॉप में 365 है इट्स वेल एंड गुड। अगर आपका पर्सनल लैपटॉप भी है तो भी फ्रेंड्स ऑफिस 365 आप खरीद सकते हैं, इट्स वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो लगभग 700 के अंदर आ जाता है। ओह, इज इट? यस। एक क्वेश्चन है मुझे शेखर, आई मीन नथिंग रिलेटेड टू दिस। एक क्वेश्चन ये है, आई मीन आई विल लेट मी गिव यू अ लाइव एग्जांपल, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एवरी मंडे वी क्रिएट अ रिसोर्सिंग फाइल। तो ये फाइल कैसा रहता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हमारे पास जो फुल टाइम एम्प्लॉइज है उसका एक अलग फाइल रहता है, हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक रहता है, और प्रीवियस वीक का जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था दोनों का, ऐसा एक फाइल रहता है, ठीक है? तो हम लोग, तो ये अलग अलग 3 सोर्सेस का फाइल हम लोग एक इसमें, आई मीन व्हाट आई एम आस्किंग इज, ये रिफ्रेश ऑल जो ऑप्शन है, क्योंकि तीनों का फॉर्मेट सेम रहेगा,
दे समटाइम्स बहुत 6 महीने में एक बार शायद फॉर्मेट चेंज होता है, अदरवाइज सेम रहता है फॉर्मेट। तो हम लोग वो रिफ्रेश ऑल ऑप्शन चूज करके हम लोग तीनों, आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज हम वो ऑटोमेट कर सकते हैं क्या पावर क्वेरी से? हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जो आपने एग्जांपल दिया ना उसमें एक चीज रियलाइज हुआ कि एवरी मंथ वी आर गेटिंग सेम फॉर्मेट और सेम टाइप का ही डेटा है उसमें, आई मीन सेल्स का ही डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि 2017 में मैनेजर का डेटा अलग फाइल से है, सेल्स का डेटा अलग फाइल से है, लोकेशन का डेटा अलग फाइल से है, और 3 फाइल्स का आप कंबाइन करके देन आपको बनाना है, तो वो आप कर सकते हो पावर क्वेरी से, राइट? यस आप कर सकते हैं। देखो ओके, मैंने कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो क्यों नहीं लिया है, हाँ, क्योंकि नहीं हमको अंडरस्टैंड, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना है करेक्ट पावर क्वेरी के करेक्ट अंदर। करेक्ट, यस अगर मैं यहाँ यस, पर सारे के सारे कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड करूंगा ना फ्रेंड्स, तो आप हाँ, नेक्स्ट वीक से आओगे भी नहीं है ना। तो ओके देखो ओके, जब डेटा के अंदर जाके आप रिफ्रेश ऑल करते हैं, तो असल में हाँ क्या होता है, जितने भी क्वेरीज है पावर क्वेरी के अंदर, जितने भी हाँ, है, तो पहले ए रन होता है, बाद में ए रन होता है, बाद में ए रन होता है, एंड हाँ। सो ऑन। तो सारे तो के हम सारे हम स्टेप। लोग ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? लेट्स से आपने हमको एग्जांपल दे भी दिया, अभी मेरे ऑफिस के लैपटॉप में ऑफिस 365 है, वेयर आई कैन यूज दिस ऑप्शंस, तो आप क्या हमको फाइल प्रोवाइड करोगे क्या कि इस पे प्रैक्टिस करना है? आई नहीं मीन हाउ? नहीं, तो तो अपना सेशन कैसे रहने वाला है, हाँ, पहले हम एक टास्क को पिक करेंगे। ओके, ओके पहले हम हाँ, डिस्कस करेंगे, डिस्कस व्हाट इज द गोल। ओके अपना गोल क्या है और अपने इनपुट फाइल्स क्या है। अब सब लोग ये अग्री करते हैं, तो हम यस, क्या करेंगे, पहले अपना इनपुट फाइल्स ले लेंगे, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको रीड करेंगे और ए गोल को हम अचीव करेंगे। ओके, ओके और ए गोल अचीव करने के बाद तो आपको टाइम दिया जाएगा वही सेम एक्टिविटी को रिपीट करने के लिए बाय योर ओन। अच्छा, ओके तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पर, तो आप प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, तो ओके मैं ओके, आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक, फिर भी नहीं होता है तो आपका स्क्रीन प्रेजेंट करोगे आप। ओके तो ये जो है अपना जो कोर्स, ये 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा, यहाँ पर कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। प्रेजेंटेशन सिर्फ इस क्लास में हमने यूज किया है, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन की फाइल हम खोलेंगे भी नहीं। ओके ओके शंकर वो पूरी वो रिजॉल्व होगी? सॉरी नहीं अगर सपोज मैं मेरे लैपटॉप पे कर रहा हूँ, अगर मुझे क्वेरी आती है तो वो उसी क्लास में रिजॉल्व होगी क्या, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। यस यस ऑन द स्पॉट आप स्क्रीन प्रेजेंट करोगे, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके 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 यस यस ओके ग्रेट। तो फ्रेंड्स कैसा है पावर क्वेरी, एक्सीलेंट। है ना। एक क्वेश्चन है, व्हाइल सिंस यू आई मीन जस्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे आप बोलते हैं वीबीए का, और आई मीन एक्चुअली कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट देन वेयर डू यू सी कि पावर क्वेरी लिटिल लैग्स एज कंपेयर टू वीबीए? देखो अगर आपको हार्डवेयर के रिलेटेड कुछ काम करना है, आपको नेटवर्क के रिलेटेड कुछ काम करना है, तो आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं ना। ओके, और पावर क्वेरी क्या होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड। अब डेटा को जैसा है वैसे उठाओ, रीड करो, ट्रांसफॉर्म करो और लोड करो। डेटा के अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन राइट, आप वीबी के थ्रू आप वो कर सकते हैं। ओके, है ना, आपको सोर्स को आपको चेंज करना है तो आप वीबी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन पावर क्वेरी में वो चीजें अवेलेबल नहीं है। ओके ओके, ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चंस? आई थिंक आई एम डन। एनीवन एल्स? सर फॉर एग्जांपल एखादा अगर क्लास मिस हो गया या समथिंग लाइक दैट, तो वो रिकवरी वगैरह कैसे, आई मीन उसका नॉलेज शेयर किसका क्वेश्चन है फॉर अ ये? पर्टिकुलर वीक। सचिन राइट? यस। हाँ सचिन, पहला मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कोई भी क्लास को मिस मत करो, क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है और हर एक एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि दूसरे एग्जाम्पल के साथ कनेक्टेड हो, और ऐसा हो सकता है कि एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कनेक्टेड हो। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन ये रहेगा
आप कोई भी क्लास को मिस मत करो। ओके, ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस केस में आप जा सकते हैं और हर एक क्लास का पहला एक 15-20 मिनट हम रिवीजन ले लेंगे। हम लास्ट क्लास में क्या किया था हम वो ले लेते हैं। अगर उस हाँ, तो आपको नोट्स जो है हर एक क्लास जैसे ही खत्म होता है आपको नोट्स बाय ईमेल मिल जाएंगे। ओके, तो आपके पास एक हफ्ते का टाइम रहता है, उस सारे के सारे एग्जाम्पल्स को आपको बाय योर ओन प्रैक्टिस करना है। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चंस है या डाउट्स है, आप उसको नोट करके रख लीजिए। जब हम अगली बार अगली क्लास में मिलेंगे तो पहले आपका क्वेश्चंस ले लेते हैं, बाद में सिलेबस। सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो? नहीं, ये सेशन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखो 3 घंटे का सेशन रहता है, 3-3.5 घंटे का, है ना? और लगभग 4-5 GB का फाइल बन जाता है वो। तो कितना मुश्किल रहेगा वो इंटरनेट के थ्रू उसको पुश करना, है ना? इसीलिए कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। शंकर जी, उसमें जैसे कि अभी मैंने इसके पहले भी क्लास किए है सीएस में, तो वो कहते थे कि क्लास शुरू होता था तो उसके पहले एक टेस्ट लेते थे जो सिखाया उसके ऊपर। तो इसी क्लास में भी वैसा होगा या नहीं होगा? हाँ, यहाँ पर भी रहेगा। हम कुछ क्लास वाले टेस्ट लेंगे, नहीं तो आपको कुछ होमवर्क वाले टेस्ट में दूंगा। ओके, जैसे कि क्लास शुरू होने से पहले कुछ टेस्ट लेते थे, उसके बाद में उसको मार्क्स वगैरह देते थे, ऐसा? मतलब मैंने जब पहले क्लास मतलब वहाँ पे एक्चुअली क्लासरूम में मतलब जाता था मैं, मतलब गया हूँ वहाँ पे, तो ऐसा पहले होता था। तो ऐसा इससे ऑनलाइन में भी हो ऐसा होगा क्या? हाँ, यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग, है ना? जी। और कोई सर्टिफिकेशन वगैरह मिलेगा इंस्टीट्यूट से? हाँ, इसके बाद क्या होता है, एग्जाम होता है। अगर आप वो एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपको AFC केस की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, ग्रेट, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? सर वन क्वेश्चन जी। सर ये आपने कोर्स बोला है 4 मंथ्स का, तो पूरा कवर हो सकता है? मुझे इसमें कोडिंग लैंग्वेज भी है, तो थोड़ा सा वरी है कि मुझे बेसिक चीजें भी नहीं पता इसके बारे में कोडिंग से। तो 4 मंथ इज इनफ? यस, इट्स इनफ। तो कैसा है ना, पहले चीजें हम यूजिंग UI करेंगे, यूजर इंटरफेस में जो भी फीचर्स है हम उसको यूज करके पहले हम काम करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, वही काम को हम रिप्लेस करेंगे यूजिंग M कोड। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलने वाली है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम पहले पूरा UI का पार्ट ले लिया, बाद में हम M कोड के अंदर चले गए, तो इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। ओके, ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चंस? आप सबके लिए टाइम कन्वीनियंट है? हाँ, नो प्रॉब्लम। यस, ओके, ग्रेट। और आपको कैसा लगा पावर क्वेरी का एक्सप्लेनेशन? इट इज गुड? Yeah, it is good. It is good. Shekhar, just one question. Now, once we are done with the training now, post the training, is there any kind of certification that we do, or how it ends? हाँ संतोष, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट होता है AFC केस के अंदर। अगर वो टेस्ट को आप क्लियर करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर आप इन फ्यूचर पावर BI कोर्स आप करोगे तो पावर BI के माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जाम होता है DA100। ओके, और वो सर्टिफिकेट को आपको क्लियर करने के लिए पावर क्वेरी की भी नॉलेज लगेगी। ओके, और उसके अंदर भी ये नॉलेज आपको काम आ सकता है। गुड। ओके, वन क्वेश्चन शेखर जी। अगर कोई पावर क्वेरी करता है and then he is doing Power BI from same institute, from your institute, right? So like the fees will be same for Power BI क्योंकि पावर क्वेरी कवर हो जाएगा ऑलरेडी, या फिर उसमें मतलब कुछ डिफरेंस होता है? नहीं, देखो असल में क्या है ना, अभी पावर क्वेरी का कोर्स अलग है
और पावर बीआई का कोर्स अलग है। तो पावर बीआई के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्या करेंगे, डेटा मॉडलिंग और डेक्स। यहाँ पर हम एक्सटेंसिवली हम डेक्स कवर करेंगे और अलग अलग तरीके का एनालिटिक्स हम देखने वाले हैं पावर बीआई के अंदर। उसका फोकस अलग है, लेकिन एक कोर्स का फोकस क्या है, यहाँ पर हम मेरा अपना मेन फोकस जो है दैट्स अ पावर क्वेरी। तो इसीलिए दोनों कोर्स इज डेडिकेटेड फॉर द कोर सब्जेक्ट। तो एक कोर्स जो है पावर क्वेरी के लिए डेडिकेटेड है और जो वो पावर बीआई का कोर्स है वो पावर बीआई के लिए डेडिकेटेड है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। ग्रेट। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रेंड्स? हाँ शंकर जी, जैसे कि अभी जैसे एप की सेल्स का एक कोर्स है कि जिसमें पावर भी आपने क्या बोलते उसको पावर पिवोट का एक कोर्स है, तो ये कोर्स पावर पिवोट का जो कोर्स है तो जो उसका सिलेबस है तो इसमें भी सब वो कवर होगा क्या नहीं होगा? यस, अपना कोर्स का इसमें है ना, ये देखो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एक्सेल पावर क्वेरी एंड पावर पाइवोट। यहाँ पर पावर पाइवोट भी हम कवर करेंगे। तो ये डिटेल में होगा क्या? बिल्कुल यस, डिटेल में ही होगा ये। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आप देख रहे हैं ये स्लाइड डेडिकेटेड है पावर पाइवोट के लिए। ओके ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस? नो। ये आपका नाम शेखर है शंकर है? सॉरी इट्स अ शेखर। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। नहीं सॉरी, मुझे भी लगा शेखर है। मैंने वो इसमें आया था वो शेखर था, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। ऑलराइट, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, तो फ्रेंड्स और कोई क्वेश्चन है आपका? No, sir. Thank you. Sir, we'll be continuing with the class right now, or like how it will be processed further? नहीं, अभी हम आज का जो क्लास था उसका पर्पस क्या था, पावर क्वेरी के बारे में एक सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था, है ना? तो ये फीस कब भरना है फिर? फीस मतलब आपको भरना है बिफोर 4th of June। बिफोर 4th of June, ओके ठीक है। तो आप 4th of June के पहले आप पे करते हैं, देन 10% डिस्काउंट इज अप्लीकेबल एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। टाइमिंग रहेगा नून 2 to 5:30 एवरी सैटरडे। ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का रहेगा। ये सबको क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है। ओके, यस सर। ग्रेट। तो इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है एक कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ताकि हम ये बोलेंगे कि आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इस एक्साइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, आप प्लीज मुझे टेक्स्ट करो ऑन दिस नंबर। Shikhar sir, since I have already decided to join with this course because I was waiting for this course for a very long time, so I'll directly this initiate with the enrollment, right? Yes. Good, thanks. ठीक है, तो फ्रेंड्स आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करो। तो टेक्स्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपका नंबर को ऐड करूँगा। तो अपना फ्यूचर कम्युनिकेशन जो भी होगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होने वाला है। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर। ओके, ग्रेट। थैंक यू शेखर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, अगर आप फोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको टेक्स्ट करना है फ्रेंड्स विदाउट फेल इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो मैं आपको एक डेडिकेटेड ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और आपका फ्यूचर कम्युनिकेशन उसके अंदर ही होने वाला है। ओके ओके सर, ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सर। Thanks, Thank you. Shikhar, for briefing the details of the course. Yeah, surely we'll connect soon. Yeah, bye bye. Thank you friends, bye, have a nice day. Bye.